almost missed my flight on my way to California. If I close my eyes, I'll be there in no time. हेलो व्यूअर्स, सो अभी हम JFK एयरपोर्ट पे हैं और प्लान है बार्सिलोना जाने का। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है ट्रैवल। Welcomes all the flashbacks. गॉथिक क्वार्टर में पतली गली से गुजरते हुए, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई साइकिलों की दुकान है शायद। यहाँ से आप रेंटल कर सकते हैं किराए पे साइकिलें लेके और बार्सिलोना को चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए लाइटों की दुकान, कितनी खूबसूरत लाइट्स हैं यहाँ पे। इस तरफ भी देखते हैं थोड़ा सा, ब्यूटीफुल। देखिए इस बिल्डिंग का कितना खूबसूरत दरवाज़ा है। इस वक्त हम गॉथिक क्वार्टर से गुजर रहे हैं। Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Gracias. ये देखें दीवार, अंदर आए। वो ये भी उन्होंने इनको हलाया भी नहीं है। देखिए फैसल साहब हमें बता रहे हैं कि 300 साल पुरानी दीवार है। में कुछ लोग सर्च करके आते हैं ना हिस्ट्री का, वो जब ये निकलती है ना चीज, वो शौक से आते हैं वो। ये देखिए स्क्वायर है गॉथिक क्वार्टर्स के अंदर। यहाँ पे इसकी डिटेल देखिए, चारों तरफ मैं आपको इसका एक जायजा देता हूँ। इसके एक तरफ हमारे पास परफॉर्मर्स हैं। आइए कुछ सुनते हैं कि ये क्या सुना रहे हैं हमें आज। बहुत अच्छा।
یہ دیکھیے ایک اور لائیولی چوک ہے. Si, au marché entre cuir et pas sec, une fois par semaine, robe blanche, des souliers en plastique, elle cherche des poissons. مزے کی جگہ دیکھیے, بلڈنگز اور درخت. درمیان میں فاؤنٹین ہے. Avec papa, Il est si fier qu'elle soit là. un jour elle n'en pourra plus, mais il n'oubliera pas. یہ ہم گراسیا میں ہیں, یہاں سے پارک گوئل کا راستہ ہوتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو دکھانے لگا تھا درخت اور یہاں کی بلڈنگ, کھجوروں کے درخت ہیں بڑے بڑے, اور ٹرین اسٹیشن سے یہ راستہ دیتے ہیں آپ پارک جانے کے لیے. Quand il se promène, robe blanche, ses souliers en plastique, tout est comme avant. Elle fait les courses avec papa, Il est si fier d'être là. elle fait les courses avec papa. Il est si fier qu'il soit là. Un jour il n'en pourra plus, mais elle n'oublie. پارک کے راستے میں دیکھیں اسکیلیٹر ہے, تھوڑا آسان ہو جاتا ہے اس سے. Il est si fier d'être là. Elle fait les courses avec papa. یہ دیکھیے پارک گوئل کی ویوز. Qu'il soit là. اس میں بھی کافی سارے اسٹرکچرز بھی ہیں اندر جو کہ مشہور آرکیٹیکٹ گاؤدی کے ہی بنائے ہوئے ہیں. ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਹੀਆ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਈਏ, ਸੱਜਣਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ. ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਹੱਸਤਾਂ ਮਿਠਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਆ ਜਾਵੇ. چھوٹے چھوٹے سیرامک کے پیسز ہوتے ہیں اور بہت ڈیٹیلڈ اس سے یہ ڈفرینٹ جانور بناتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بنائی ہوتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کچھوا ہے. یہ ہم بارسلونا کی اسٹیشن میں ویڈا گیئر, کچھ اس طرح کی یہاں کی سب وے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائلس وغیرہ لگی ہوتی ہیں, صاف ستھری ہے, اچھا نظام ہے اوور آل. دیکھیے سب وے آ رہی ہے. بھری ہوئی ہے. یہاں کا مشہور چرچ ہے ساگرادا فیملیا, تقریباً 150 سال سے بن رہا ہے, ابھی تک نہیں بنا ہے. دیکھیے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹاپ پہ جو ٹاور ہے, اس کا اونچا سب سے اونچا ٹاور ہے, اس پہ ابھی بھی کام جاری ہے. شاید اگلے سال تک یہ مکمل ہو جائے, اور کچھ اس کے اور سیکشنز بھی ہیں. تو یہ یہاں کا مشہور آرکیٹیکٹ ہے اینٹونی گاؤڈی, اس کی ڈیزائن کیے ہوئے عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے. بہت مشہور آرکیٹیکٹ تھا اس ایریا کا, بارسلونا کا, کاتلان ریجن کا, اپنے زمانے کا, اور بہت ڈیواؤٹ بھی تھا. تو اس کے چرچز آپ کو بہت ملیں گے, اس کے ہسپتال بھی ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. دیکھیے اس چرچ کی خاص بات دیکھیے کہ کس قدر ڈیٹیل میں اس کے اوپر کام کیا گیا ہے.
अब इसकी दीवारें देखिए, इसके ऊपर जो मुजस्मे हैं और छोटी छोटी डिटेल्स देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत से बनाई गई हैं। ये इसकी ख़ास बात है। सग्रादा फैमिली यानी कि सीक्रेट फैमिली, जीसस और फैमिली के मुताबिक बेसिकली। और चर्च है, यहाँ पे सर्विस भी होती है, बहुत बड़ी यहाँ पे कैपेसिटी है। मेरे ख्याल में संडे की मैच के लिए भी सुबह को लोग जाते हैं। इस चर्च की लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इनकम्प्लीट काम होने वाला है। काफ़ी सारे देखें पिलर्स बना रहे हैं। कि आई थिंक ख़ास बात है कि इसमें बहुत डिटेल है, बाइबल के मुख्तलिफ वाक़यात को डिपिक्ट किया गया है स्टैचूज़ के ज़रिए। ये साइड देखें काफ़ी हद तक कंप्लीट रखती है, बिल्कुल बैक साइड है, इसके भी आप स्टैचूज़ देख सकते हैं। तो यही बताते चला कि ये जो चर्च है इसकी जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इसका टावर करीबी पहाड़ से थोड़ा सा नीचे होगा, जस्ट टू शो रिस्पेक्ट। ये इस चर्च की बैक राइट साइड है और यहाँ पे गुंबद पिलर्स कम है और आप देख सकते हैं कि खिड़कियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं आपको। खिड़कियाँ इस पूरे चर्च में बहुत ज़्यादा है और इसकी ख़ास बात है कि जब आप इसके अंदर होते हैं, सर्विस देख रहे होते हैं या इबादत के लिए जाते हैं, तो आपको बहुत खूबसूरत यहाँ पे कलरफुल लाइट्स नज़र आती हैं। इसका यहाँ पे आपको मेंशन करता चलो कि अगर आपने बार्सिलोना में कहीं अंदर जाके देखना है तो आपको कई हफ्ते पहले टिकट लेना पड़ता है ऑनलाइन। ये देखिए इस छोटे डोम पे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये ज़्यादातर आपको कातलान में लिखी हुई मिलती हैं और स्पेनिश के करीब करीब ये थोड़ी सी तरह ये आक्सियो दे ग्रासियस लिखा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में शुक्रिया का एक्शन, इसको स्पेनिश में आक्सियो दे ग्रासियस कहते हैं। तो ये लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट है इनका। बाकी आपको देखें ग्लोरी से, और ये आप देख सकते हैं तामीर होते हुए। ये इसको थोड़ा सा और इस साइड से देखते हैं, यहाँ पे लगता है कि कंस्ट्रक्शन का भी काफ़ी काम होना बाकी है। क्रेन खड़ी हुई है। जी इन मीनारों पे भी काफ़ी काम हो रहा है आजकल। आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जारी है। अभी देखिए बन के मुकम्मल नहीं हुआ, फिर भी कितनी ज़्यादा यहाँ पे सयाह आते हैं और एक बहुत मेजर टूरिस्टिक स्पॉट है। बार्सिलोना के देखिए सूवेनियर्स बेच रहे हैं, बैकपैक्स हैं, मफलर्स हैं, स्कार्फ हैं, टोपियाँ हैं, मैग्नेट्स मिलते हैं आपको, और बहुत सारे आपको यहाँ पे देसी भी दुकानों पे भी नज़र आएंगे और रेडियो पे भी ऑफ कोर्स। तो अगर आप बार्सिलोना में घूमते हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रही है चर्च की बैकग्राउंड के साथ। बार्सिलोना में ये सड़क है, बिल्कुल रामला, यहाँ पे मशहूर सड़क है रामला, बिल्कुल उसी तर्ज की ये भी है कि बहुत बड़ा है। इसमें दरमियान में देखिए पैदल चलने का रास्ता है, दोनों तरफ दुकानें हैं और रेस्टोरेंट वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। रेस्टोरेंट ने टेबल्स अपनी दरमियान में ही लगाई हुई है सड़क के ऊपर और लोग खाने से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और साथ साथ जगह तो है ही। ये मैं आपको लाइट दिखाना चाह रहा था इस चौक के अंदर। देखिए ये खूबसूरत लाइट्स लगाई हुई हैं इन्होंने। बार्सिलोना की एक ख़ास बात आप ये भी देखिए कि यहाँ का आर्किटेक्चर आपको जिस तरह, ये आम सी इमारत है, कोई ख़ास इमारत मेरे ख्याल में नहीं है मशहूर, लेकिन इसकी भी आप खिड़कियों का डिज़ाइन देखिए, उसके ऊपर मेहराबें हैं, तो थोड़ा बहुत इनको इस तरह का शौक़ है इमारतों को खूबसूरत बनाने का। देखिए जिस तरह इसकी खिड़कियाँ देख लीजिए और स्लाइड का मैं जिक्र कर रहा था।
یہ عام سی عمارتیں ہیں لیکن ان کی کھڑکیاں کتنی خوبصورت ہیں. یہ بلڈنگ ویسے اتنی مشہور نہیں ہے لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں خوبصورت ڈیزائن ہے. مینگو برانڈ کا اسٹور ہے. یہاں پہ مینس کلیکشن بھی ہے. زیادہ تر اسٹور میں آپ کو ویمن کلیکشن ملتی ہیں. گاؤدی کی مشہور بلڈنگ میں سے ایک یہ ہے جس کا نام کاسا بانگلو ہے. یہ کاسا بانگلو کا بیک سائڈ کا ویو ہے اور اس کے ساتھ والی بلڈنگ بھی بہت خوبصورت ہے. اس میں کیفیٹیریا ہے اور اسی طرح یہاں پہ ایک آرٹ شاپ بھی ہے. یہاں پہ فلمیں بھی لگتی ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کی چھت پہ بھی دیکھیے کام ہے اور اس کے ایک لیمپ بھی ہے. دیکھیے اس بلڈنگ میں کتنا خوبصورت کام ہے ٹائلوں کا. اور ایک میں آپ کو دروازہ بھی دکھانا چاہ رہا تھا. ڈیٹیلڈ ورڈ ہے اس کے اوپر.